Let us see what all relations are here. So we have initial velocity, we have final velocity, we have accelerations, and we have time. So mainly I wanted to show the proof that we can have for the third one using the method of calculus, because the way we did, thereby we didn't see the usage of the equation a is equal to v dv by ds. Okay, so main motive is to use this equation. Similarly, you can see here we have s, u, t and a, and here we have the relation between u, v, a and s. So probably we have used v a is equal to dv by dt and integrated and proved this one. Similarly, we have used the same definition, and instead of v, we have used ds by dt, and we have proved this equation. Now, to prove the third one, the most important thing is we can see this relation has u, v, a and s. So now how can I relate it? Because earlier what we did, we proved this one, and instead of t we substituted v minus u by a. So we must have even a direct way of proving this one using calculus only. So let's say I take this one and I put a into ds is equal to v into dv, and then when we integrate, we get 0 to s from u to v, and this gives us v square by 2 from u to v, and a comes outside, right? So from this we will easily get 2as as v square minus u square, which was needed to be proved, right? So my main motive was to work with this equation, because the graphical proof as well as the proof using calculus we have already done in the previous sessions. So let's move ahead with few questions related to the usage of these three equations. Yes, we also have the fourth equation. क्या है fourth equation? S is equal to u plus v by 2 into t. So when you have the questions relating the parameters u, v, s and t, we can use this equation, but preferably we have to always remember just these three equations, because the fourth equation is not that important because it can be obtained from these three equations only. So only important thing is to remember these three equations. And now let us see few more questions related to the usage of these kinematic equations, right? We call them as kinematic equations. Okay, before we move ahead with the questions, any doubt any one of you has, you can let me know. Okay, then everyone will do this question. सबको ही करेंगे. We'll start with the simple questions and go to the more advanced one. Yes, let me know the answer for this.
So a body moving along a straight line with uniform acceleration has a speed 15 when passing a point P. जब पॉइंट P को पास कर रहा है इस टाइम पे उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड एंड 35 मीटर पर सेकेंड व्हेन पासिंग अ पॉइंट B. जब B को पास कर रहा है देन इट्स स्पीड इज 35 मीटर पर सेकेंड. You have to calculate its speed at the midpoint of PB. इसके मिड पॉइंट पे स्पीड कितना था. That means exactly same distance from either end. सभी कोई करेंगे. Just relate all the parameters. P और B पे स्पीड दिया हुआ है. We have to find the speed at the midpoint of line joining PB. Root 750. Okay, one answer I have got. Root 750. सभी कोई ट्राई करेंगे. ये देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल. अगर ये डिस्टेंस को हम लेंगे x तो ये डिस्टेंस भी या फिर हम ले लेते हैं ये डिस्टेंस को s तो ये डिस्टेंस भी होगा हमारा s. तो इस x पॉइंट पे लेट अस सपोज एक्सीलरेशन a है. मतलब थ्रू आउट द पाथ हमारा एक्सीलरेशन a रहेगा बिकॉज इट्स गिवन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. है ना. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इट्स नॉन चेंजिंग एक्सीलरेशन या फिर कांस्टेंट कह देते हैं. तो हमने ये भी देखा था व्हेन दोज काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड. ये जो सारी इक्वेशंस हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी या फिर s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सब कब अप्लाई हो सकते हैं. व्हेन द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. है ना. ओके यस. और व्हेन a इज कांस्टेंट. तो अभी क्या करेंगे हम इस टोटल पाथ को लेंगे. सो वी विल अप्लाई. देखो क्या क्या दिए हुए हैं. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सीलरेशन है. So it's better to use this third equation. है ना. Just find out what all things are given and accordingly we will decide the equations to use. तो चलो थर्ड इक्वेशन हमने यूज किया. Let us put the values here. 2a तो हमें निकालना है. डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस हो गया 2s. यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया 2s क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं बिटवीन द पॉइंट p एंड b. अब v स्क्वायर क्या है 35 स्क्वायर और u स्क्वायर क्या है 15 स्क्वायर. तो यहां से अगर हम a इंटू 4as इसको हम लिख सकते हैं 1225 माइनस 15 स्क्वायर 225. तो ये हो गया 1000
मतलब a इंटू एस हो गया हमारा 250. दैट इज इक्वेशन 1. लेट अस यूज द अदर कंडीशन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स स्पीड एट द मिड पॉइंट. तो इस मिड पॉइंट पे लेट अस अज्यूम कि इसका स्पीड है v, and let us apply the same equation for the range p to x. तो यहां पर क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एक्सीलरेशन तो वो सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट s. So from here let us put the value of a into s. a into s क्या है, 250. So v square is equal to 2 into 250 plus 15 square, that is 225. तो यहाँ से v हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 500 प्लस 225, ये हो गया 725. Right? So root 725 meter per second. This is the speed at the midpoint of PV. ये सभी को समझ में आया, स्पीड कैसे निकाला हमने? Okay. Whoever has doubt, they can ask me. Okay, let us move to the next question. Let's do this one. Body A starts from rest with an acceleration a1. रेस्ट से स्टार्ट करता है बॉडी और उसका एक्सीलरेशन क्या है, a1. After 2 seconds, another body, this is for body A. And then after 2 seconds, means time difference is 2 seconds. If they travel, body B starts with acceleration a2. If they travel equal distance in the 5th second after the start of A, तो जब A start करता है, then it stated they travel equal distance in the 5th second. If you would all remember, we have all figured out that the distance traveled in nth second. The formula for this. What was the formula for distance traveled in nth second? Distance traveled in nth second. We have derived this formula. D, okay, that's right. dn minus 1. That is correct. But it's always preferable to remember this formula. U plus a by 2 into 2n minus 1. है ना? U plus a by 2 into 2n minus 1. We have derived this. So we will use this formula because it is stated that in the 5th second, that means
D5 दोनों का, A का और D5 B का सेम है. That means in fifth second they travel equal distance. Then in this case you have to find out the ratio of A1 and A2. 5 by 9, 9 by 13. Everyone will try. See all the information we have in the question. Only difference is that the condition given here is that B starts after 2 seconds. मतलब B मूव करना कब स्टार्ट करता है? A के 2 सेकंड बाद. That means how much time A takes? 5 seconds. है ना? हम A को कंसिडर करेंगे in 5 seconds where A is. तो let us suppose A का हमने कंसिडर किया t is equal to 5 seconds. तो B का क्या कंसिडर करेंगे? t is equal to 3 seconds. या फिर फिफ्थ सेकंड अगर हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं तो टी बी का कंसिडर करेंगे थर्ड सेकंड. क्यों बी का थर्ड सेकंड कंसिडर करेंगे? बिकॉज बी स्टार्ट्स 2 minutes लेट एज कंपेयर टू ए. है ना? इट्स रिटन हियर बॉडी बी स्टार्ट्स 2 minutes later. So after 2 seconds another body B starts. Okay, so for A we will apply the distance traveled in 5 seconds. That means fifth seconds. We will not find out this expression again. Let's directly use it. So distance traveled in fifth second क्या होगा A के लिए? Initial velocity 0 है. Acceleration A का क्या है? A1. So divided by 2 into 2 into n. n क्या है हमारा यहाँ पर? 5 है. So 2 into 5 minus 1. So this becomes A1 by 2 into 9. Similarly, we will find the distance traveled by B in third second, right? Because this fifth second is with respect to A, because the clock is running and B is 2 minutes 2 seconds late. तो D3 क्या होगा? A2 by 2, क्योंकि U तो इसका भी 0 है, because it is also starting at rest, into 2 into 3 minus 1. So ये हो जाएगा 5 into A2 by 2. So if we find the ratio, तो रेशियो क्या हो जाएगा? D5 by D3 is equal to 9A1 by 5A2. And what is given? They travel equal distance in fifth second. मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं. So that means it is 1. They all factor out. तो ये हो गया 5A2 is equal to 9A1. और यहां से A1 by A2 क्या मिल गया? 5 by 9. So this 5 by 9 is the right answer. Yes, Sampada, the thing is, it's stated in the question that if they travel equal distance in the fifth second after the start of A, है ना? यहाँ पे मेंशन है कि अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ए के 5 सेकंड स्टार्ट होने के बाद, और यहां पर ये भी लिखा है दैट आफ्टर 2 सेकंड्स बॉडी बी स्टार्ट्स. तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं 5 सेकंड्स, तो बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 3 सेकंड्स, है ना? बिकॉज बी इज स्टार्टिंग 2 सेकंड्स लेट. तो हमारा जो टाइम कैलकुलेशन होगा वो ए के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फिफ्थ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ए. और बी कितना टाइम लेगा तब तक? 3 सेकंड्स, है ना? अगर कोई क्वेश्चन रहता जिसमें कि
बात रहती है कि आफ्टर 10 सेकेंड द स्टार्ट ऑफ ए। तो ए के लिए हम लेते 10 सेकेंड्स और बी के लिए हम क्या लेते 8 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि ए फर्स्ट 2 सेकेंड्स में मूव कर रहा है और बी क्या है उस समय तक रेस्ट में है। फिर 2 सेकेंड्स के बाद बी स्टार्ट कर रहा है मूव करना। ये क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? Okay, let's do this one quickly. We will do. So I expect everyone to do this. अभी अभी हमने similar type question discuss किया. You can use exactly the same concept, the same formula. सभी कोई को करना है. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ए क्या है कांस्टेंट. द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड to the distance covered in n minus 1 second. So what was the expression of distance covered in nth second? dn, that is u plus a by 2 into 2n minus 1. So we can use this same expression. Everyone will tell me the ratio for this one. n plus 1 by n. Two n minus 1 is to 2n minus 3. Let us see. u तो 0 है. So distance traveled in n seconds क्या हो जाएगा? Just a by 2 into 2n minus 1. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन क्या हो जाएगा? u फिर से 0 रहेगा. a बाई टू इंटू एन माइनस वन. तो ये हो जाएगा a बाई टू एन माइनस थ्री. तो जब रेशियो लेंगे दोनों का dn बाई डी एन माइनस वन, तो ये a बाई टू और ये a बाई टू कट जाएगा. बचेगा हमारे पास क्या? सिर्फ 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2n माइनस थ्री. दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. We directly use this distance traveled in nth seconds.
Okay, if this is clear to you all, now let us move ahead to free falling motion. We will talk about motion under gravity. So you all would have gone through motion under gravity in class 9. What is motion under gravity? Very simple. जो मोशन ग्रेविटी के वजह से होता है या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, that is motion under gravity. So for example, if I throw a ball up, in that case, what is observed? After some point of time or after reaching the maximum height, the ball returns back to the surface. अब ये बॉल रिटर्न क्यों करता है टू द सरफेस? बिकॉज देर इज gravitational force acting on this ball. So we will talk about gravitation in detail. अभी के लिए हम समझते हैं कि क्योंकि बॉल पे एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज द वेट, विच इज mg. अब यहाँ पर एक और कंडीशन हम अज्यूम करते हैं और तभी सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट कंडीशन इज दैट देर इज नो एयर रेजिस्टेंस. जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या था कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अब इस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मीनिंग दैट वी आर कंसीडरिंग द सेम एक्सपेरिमेंट टू बी हैपनिंग मोरओवर इन वैक्यूम. That is little bit non-realistic, but still we consider no air resistance so that there will be no retardation to this motion of ball. Okay, so if the ball applies, if the ball has some weight acting on it, that is mg, मतलब कि इस पे एक्सीलरेशन क्या एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, whose value is 9.8. you all would have remembered this, या फिर हम कभी 10 भी लेते हैं if it is mentioned in the question, else preferably we take 9.8 if it is not mentioned. Now to solve any questions related to motion under gravity, पहले मैं क्लास 9th की चीजें यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि what all things you all would be doing, then I will suggest the improvement that we require for further study in motion under gravity. अब now I'll be talking about convention. I will be talking about sign convention. जैसे देर आर टू केसेस, एक तो हमने सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, दूसरा कंडीशन क्या है कि सरफेस यहां है और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, राइट? सो इन दिस केस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गोइंग अप, दैट्स केस 1, एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन. अच्छा, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या थे. इन द फर्स्ट केस, in this first case, if you observe, let us say object is thrown, at 20 meter per second speed. Find the maximum height reached. So I am recalling कि क्लास 9th में आपने या पहले क्या पढ़ा होगा. तो यहां पर क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है. 1, we have initial velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी हम पहले क्या लेते थे, 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हमने दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन हम क्या करते थे, वी यूज टू टेक दिस एक्सीलरेशन एज नेगेटिव. और नेगेटिव क्यों लेते थे, बिकॉज ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और एट एवरी पॉइंट इट इज रिटार्डेड, है ना, फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. सो अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देन डेफिनेटली इट इज रिटार्डिंग, मतलब मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है. सो इफ इट इज रिटार्डिंग, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ हमारा, नेगेटिव. ओके, एंड इफ वी वांट टू फाइंड एस, वी हैव द इंफॉर्मेशन कि जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है,
तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0, राइट। हम यही अप्लाई करते थे कंडीशन क्लास 9th में। अच्छा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन, इस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दैट फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ height 100 meter an object is released. We have to find the time taken by the object to hit the ground. अब इस केस में हम क्या करेंगे? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऑब्जेक्ट रिलीज किया है हमने, तो u हमारा है 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन 100 मीटर्स। और यहां पर जो है ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग in the same direction as the object is moving, है ना। मोशन और फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन हम लेंगे 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी नीड टू फिगर आउट टाइम, सो वी कैन कनेक्ट देम यूजिंग s equals ut plus half at square and we can connect it using 2as is equal to v square minus u square. So what we have observed, if the object is thrown up, when the object is thrown up with certain speed, इस केस में एक्सीलरेशन हम क्या लेते थे? -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, यहां पर एक्सीलरेशन क्या ले रहे हैं हम? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू ऑल कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस वन, this idea of applying equations, but what I will suggest to go with a new convention because that convention will be used everywhere. हम जो कन्वेंशन अभी डिस्कस करेंगे, दिस कन्वेंशन कैन बी अप्लाइड टू एवरी चैप्टर। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम मोशन और फोर्सेस को एनालाइज कर रहे हैं, विच इज करेक्ट। अब हमारा जो साइन कन्वेंशन है, सी यू आर फ्री टू यूज ईदर ऑफ द साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग मोशन अंडर ग्रेविटी, बट सम क्वेश्चंस जो कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, वो सिर्फ सेकेंड कन्वेंशन से ही सॉल्व हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर to solve everything using the second convention. तो second convention हमारा क्या है? It's very simple, mathematical convention है ये, मतलब coordinate geometry का convention है। That is कि with respect to a point, उस point के respect में everything to the right will be positive, to the up will be positive, to the left will be negative, to the down will be negative. I'm talking about everything. Okay. And what is this point P? This point P is the point of projection. और बस यही है हमारा साइन कन्वेंशन। दिस इज जस्ट आवर साइन कन्वेंशन। क्या है? पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, और उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में राइट और अप पॉजिटिव होगा, लेफ्ट और डाउन नेगेटिव होगा। तो देखते हैं, यही दो सिचुएशन देख लेते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट को हमने किधर फेंका? ऊपर की तरफ फेंका, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट्स ऑल। अब ये अगर हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप। तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू क्या हो जाएगा? हम लेंगे +20। एक्सीलरेशन क्या होगा? देखो, तो एक्सीलरेशन हर पॉइंट पे नेगेटिव के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड एज यूजुअल v0 होगा, s0 होगा। यू कैन सी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। इस केस में ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
अब इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सारा चीज नीचे जो है वो नेगेटिव है, टू द अप एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगा हमारा। कैन एनीवन टेल कि सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, 100 या -100 अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन? Point of projection with respect to it, I am going 100 meters down, या this object thrown is going 100 meters down, तो ये क्या होगा, -100। एक्सीलरेशन क्या लेंगे हम, कैन एनीवन टेल, ये +10 लेंगे या -10 लेंगे? -10, वेरी गुड, क्योंकि एक्सीलरेशन हर पॉइंट पे नीचे की ओर हो रहा है। ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट द टाइम, right? So the idea will be very simple. Point of projection is acting like on origin, और उस point of projection के respect में everything to the right and top positive, to the left and bottom negative. Okay, some of you might also ask कि यहाँ पर तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लगाया? तो ये तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हुआ। नाउ लेट अस सी कि हमारा कन्वेंशन करेक्ट कैसे है, क्योंकि मोशन जब ऊपर की तरफ हो रहा था तो यू कैन सी ऑल द पैरामीटर्स दैट वी हैव प्रीवियस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कन्वेंशन, वो सब सेम है, मतलब कि हमारा रिजल्ट सेम मिलेगा। बट इफ यू लुक मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज डाउन, तो यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ अलग हैं। तो क्या हमारा रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा? नो, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अब सेम रिजल्ट लेट अस सी कैसे मिलता है। व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट दीज पैरामीटर्स। तो हमने कौन सा इक्वेशन यूज करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इसके रेस्पेक्ट में एस क्या है, 100, यू इंटू टी तो कैंसिल हो गया क्योंकि यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? This is the equation, this is the final equation that we have got when we have used this equation with respect to this parameter. अब सेम चीज इन पैरामीटर्स को लगाते हैं, तो s क्या है हमारा, -100, ut तो कैंसिल हो गया, u जीरो है, हाफ a क्या है हमारा, -10 टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कट हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 100 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा सेम है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कन्वेंशन। सो वॉट एवर कन्वेंशन यू फील बेटर यू कैन अप्लाई, चाहे ये फर्स्ट कन्वेंशन यूज कर लो या फिर सेकेंड कन्वेंशन यूज कर लो, रिजल्ट विल बी सेम। बट वी आर मेनली गोइंग टू यूज दिस सेकेंड कन्वेंशन, ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज वी आर मेनली गोइंग टू यूज इट इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है सभी को? ओके, so we will do some questions based on motion under gravity. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ये करेंगे।
A ball is dropped from a high tower such that the distance covered by it in the last second of its motion is same as the distance covered by it during the first 3 seconds. First 3 seconds में जो distance travel किया that is equal to the distance traveled in the last second. You have to find the time taken by the ball to reach the ground and the height of the tower. So distance traveled in first 3 seconds क्या होगा? पहले तो बॉल को हमने ड्रॉप किया है एक हाई टावर से. So initial velocity is 0. Acceleration -10. है ना? I am using the convention that we discussed secondly, क्योंकि ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ओरिजिन. ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स ये क्या होगा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? u इंटू टी, दैट इज 0. हाफ इंटू a, नो वी कैन नॉट यूज दिस. हाफ इंटू माइनस को आगे ले लिया 10 इंटू टी. टी क्या है हमारा? इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, सो टी इज 3 स्क्वायर. तो ध्यान से देखो तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया? -45 मीटर्स, राइट? एंड दिस इज करेक्ट क्योंकि इस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना तो नीचे आया -45 meters. Now what is the question? Question is find the distance covered. Distance क्या होता है? That's always the magnitude. तो distance हो गया हमारा 45 meters. To find the time, it is stated that the ball is dropped such that the distance covered in first 3 seconds is equal to distance covered in the last second. You have to find the time taken by the ball to reach the ground. So let us equate this distance traveled in first 3 seconds and the distance traveled in last second. So yes, whoever has got 45 meters first for the distance, that is right. Just find out the time. You have the condition here. Distance covered by it in the last second is same as the distance covered by it during the first 3 seconds. Last second में क्या हो गया distance cover? Let us suppose कि ये this ball takes t seconds. Let's say ball takes t seconds to reach the ground. अगर t seconds लेता है, so distance traveled in last second क्या होगा? u plus a by 2 into 2n minus 1. ये था फॉर्मूला. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये तो है nth सेकेंड, तो टीथ सेकेंड मतलब कि लास्ट सेकेंड क्या होगा? u प्लस, अच्छा a क्या है हमारा? माइनस, सो u माइनस 10/2, तो -5 हो गया इंटू 2t-1. अच्छा u क्या है? 0 है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड क्या हो गया? -10t + 5. एंड दिस इज इक्वल टू 45. तो -45 क्या हो गया? 5 - 10t. तो यहां से 10t हमें मिल जाएगा 50, राइट? और यहां से हमें t मिल जाएगा 5. टेल मी व्हाट ऑल आंसर्स यू गॉट. सभी कोई ट्राई करेंगे. लेट मी नो इज दिस 5 राइट और नॉट. लेट मी नो द कंडीशन इज राइट और नॉट हियर, वॉट एवर वी यूज्ड.
सभी को मिला 5 seconds? How did you get 6 seconds? The condition is very clear here that ball takes, if the ball takes t seconds to reach the ground, अगर t second लगता है बॉल को ग्राउंड पहुंचने में, so what is the distance traveled in the last second? Let us suppose कि 10 seconds बॉल को लगता है नीचे आने में, so distance traveled in last second क्या होगा, मतलब कि 10th second, right? तो वही हमने यूज किया, distance traveled in t seconds, teeth second basically. This is clear to all? Its given distance traveled in last second is equal to the distance traveled in first 3 seconds. तो दोनों को बस हमने इक्वेट कर दिया. We found the distance traveled in last second means th second, and we found distance traveled in first 3 seconds using s is equal to ut plus half at square, and we have equated that because it was given they were equal. सभी समझे? Everyone will let note it down, then we will move ahead. किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? यस सिंचना, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट सेकंड है वो या फिर फर्स्ट सेकंड हो, u तो वो वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है. इफ दैट इज जीरो, it should be zero throughout the motion because u is constant. Yes, we can do this one. So question is, two balls, not halls, two balls of different masses m1 and m2 are dropped from two different heights h1 and h2 respectively. Find the ratio of the time taken by the two balls to drop through these distances.
Before solving this one, everyone can tell me, let us suppose, yes Renuka, whatever value you take for a -9.8 या फिर -10 या फिर a ही ले लो या g ले लो, वो तो फैक्टर आउट होंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो, है ना, फैक्टर आउट होना चाहिए. सो एवरीवन विल टेल मी, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ और मैंने सेम हाइट से दो बॉल को नीचे फेंका. एक बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम और दूसरा बॉल है जिसका मास है 20 केजी. ये कोई स्टोन ले लिया मैंने 20 ग्राम या 20 केजी. फ्रॉम सेम हाइट आई एम ड्रॉपिंग देम. यू हैव टू टेल मी विच बॉल रीचेज फर्स्ट. इस केस में कौन सा बॉल रीच करेगा फर्स्ट. सभी कोई 20 केजी कह रहे हैं. 20 केजी होगा? नहीं होगा. वी मस्ट रिमेंबर कि हम ये रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, देयर वी डू नॉट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्सेस, है ना. चाहे आप एक फेदर को भी रिलीज कर दो सेम हाइट से, अगर रियल टर्म्स में देखें तो फेदर लेट रीच करेगा, बट हियर वी आर नॉट टेकिंग एयर रेजिस्टेंस. तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं. तो क्या होगा, object of any mass when dropped from same height will reach the ground at the same time. That has to be remembered. So object of any mass reaches the ground at same time or in same time. Okay, ये statement हम याद रखेंगे. Okay, yes, let us do this, continue with this one. So you get 1:1. Okay, सभी कोई करेंगे. एक आंसर मुझे मिला 1:1. ये देखो हाइट इसमें अलग है ना, तो chances are very less that we get 1:1. We will do and check कि क्या आंसर है, but their heights are different. रूट h1 by रूट h2 एक मिला और आंसर दूसरा. सभी सभी कोई करेंगे. देखो यू कैन डायरेक्टली यूज द इक्वेशन. इस कंडीशन में डायरेक्टली हम यूज करेंगे. टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, चलो हटा दिया मासेस, इसकी कोई कंसिडरेशन ही नहीं करना है इसको. दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2. एक बॉल को हमने h1 हाइट से रिलीज किया. दे आर ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये बॉल 1 है. दूसरा बॉल, ये बॉल 2 है, h2. u इज 0 मीटर पर सेकेंड. ये भी ड्रॉप किया है हमने. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन. सो वी विल जस्ट यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. चलो हमने a का वैल्यू ही ले लिया. एंड वी डोंट वांट टू यूज वेरिएबल्स एंड गेट आवरसेल्व्स कंफ्यूज्ड. हमने a का वैल्यू ही ले लिया. क्या कंसीडर किया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, -h2 होगा, क्योंकि h2 तो हाइट है, हाइट हमेशा पॉजिटिव में होते हैं. और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -h1, बिकॉज दिस इज बिलो दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन p. सो लेट्स जस्ट कनेक्ट देम ताकि हमारा t यूज हो सके. सो h इज इक्वल टू, आई शुड राइट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. So let's put the values here in this equation. S क्या है, -h1, u into t 0 हो गया, हाफ into a, so -5 हो गया, t1 स्क्वायर. तो t1 स्क्वायर क्या मिला, h1/5. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. फिर से क्या कर दिया, ये पैरामीटर्स को हमने इस इक्वेशन में डाला. सो हमें मिलेगा -h2 इज इक्वल टू -5t2 स्क्वायर. तो यहां से t2 क्या मिला, h2/5. So we have to find the ratio of the time taken.
तो रेशियो निकालने के लिए लेट अस सिंपली डिवाइड देम. सो डिवाइडिंग 1/2, क्या मिलेगा? T1 by T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 by H2. So this is equal to root of H1 by H2. So those of you who got root of H1 by H2, they are all correct. लास्ट पार्ट, ये देखो हमने दोनों इक्वेशन लगाया और ये निकाला T1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 by 5. इसको सॉल्व किया, फिर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 by 5. Now, since the question was to find the ratio of the time taken by the two balls to drop through these distances, we have to find the ratio of the time taken. मतलब T1 by T2 निकालना है. तो अब ये इक्वेशन है, T1 by T2 कैसे निकालेंगे? लेट्स जस्ट डिवाइड देम. तो लेफ्ट हैंड साइड्स को हमने डिवाइड किया राइट हैंड साइड से, तो हमें ये मिल गया, ये कट हो गया. T1 by T2 स्क्वायर क्या मिला? H1 by H2. अब हमें T1 by T2 चाहिए था, तो इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा H1 by H2. दैट्स ऑल. लेट अस डू दिस वन. From a point A 80 meters above the ground, तो ये हमारा ग्राउंड है. फ्रॉम, ये बिल्डिंग नहीं है, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ए which is 80 meters above the ground. A particle is projected vertically upwards. इस पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड. किस स्पीड से फेंका हमने? 29.4 मीटर पर सेकेंड. 5 seconds after or later, another particle is dropped from point B 34.3 meters vertically below A. मतलब पहले इसको फेंका हमने और इसके फेंकने के 5 सेकंड बाद, दैट मीन्स फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ए का हम टाइम टी ले रहे हैं तो बी का हमें टाइम कितना लेना चाहिए? T-5, राइट? सो आफ्टर दिस इज थ्रोन, 5 seconds आफ्टर another particle is dropped from point B, और पॉइंट बी कहां पर है? 34.3 meters vertically below A. 34.3 meters below A. और हाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग? इट इज ड्रॉप्ड. अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया है हमने तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक्स द अदर. कहां पर ये ओवरटेक करेगा? लेट अस सपोज कि आपने निकाला यहां पर ओवरटेक कर रहा है, सो यू हैव टू टेल this much distance or at a height of this much, and of course you need to find the time when they overtake each other.
ओवरटेकिंग मतलब बेसिकली एट द पॉइंट वेयर दे मीट, है ना, क्योंकि मीटिंग के बाद ही ओवरटेक होगा. सो क्विकली वी विल डू दिस. We will just apply the equations of motion under gravity. एयर रेजिस्टेंस हम कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे. नो वन शुड कंसिडर एयर रेजिस्टेंस. ये कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता है जिसमें एयर रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना पड़े. कहीं मेंशन है एयर रेजिस्टेंस? क्विकली यू ऑल विल डू. विवेक, वी विल नॉट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस. कहीं पर नहीं मेंशन है कि एयर रेजिस्टेंस is this much or this much should be used. Okay. So if we look at the path traveled by both these objects, A जो है ये क्या होगा, यहां से ट्रेवल करके कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाके और फिर ये नीचे की तरफ आएगा. और B क्या होगा, B इस पॉइंट से ये तो सिर्फ नीचे की तरफ ही आ रहा है. सो लेट अस सपोज कि हमने माना कि इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. सो लेट अस सपोज कि ये जो मीट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स द टाइम विल बी, अगर एक टाइम ले रहा है 5 प्लस टी सेकेंड्स, तो बी कितना टाइम ले रहा है, टी सेकेंड्स टू कम डाउन टू दिस पॉइंट, लेट अस से मीटिंग पॉइंट एम. इज दिस क्लियर? बी टी क्यों ले रहा है और ए 5 प्लस टी क्यों ले रहा है? बिकॉज ए हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी 5 सेकेंड्स बिफोर द थ्रो ऑफ बी, है ना. बी को हमने ए के 5 सेकेंड बाद फेंका, तो जितना टाइम बी लेगा वो ए से 5 सेकेंड कम होगा, राइट. So this thing we will remember. So let us write here for B and for A. A क्या टाइम लेगा, 5 प्लस टी. B क्या लेगा, T. B कितना डिस्टेंस नीचे आया, लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस नीचे ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ B के रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स. A के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एक्स प्लस 34.3. एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या है, नीचे ही है ना. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों केस में ये और ये हो गया, तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, माइनस, लेट्स टेक माइनस 9.8, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में है सारे. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स जो हमने लिया, टी, टी प्लस 5 क्यों लिया, डिस्प्लेसमेंट्स क्यों लिया इतना? यस संप्रीता, बी को बाद में फेंका है हमने, तो बी टी प्लस 5 होगा. कैसे? लेट अस सपोज two boys A and B are starting at the same time, not same time, let's say same place. A पहले स्टार्ट कर गया, A पहले स्टार्ट किया और ये पहुंच गया स्कूल इन टाइम 5 आवर्स. B बाद में स्टार्ट किया और ये पहुंच गया स्कूल, लेट अस सपोज B स्टार्टेड आफ्टर 2 आवर्स. एंड लेट अस सपोज टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर पता चलेगा. A लेट अस सपोज स्टार्ट किया 7 AM, तो A कब पहुंच गया, 12 PM, है ना, 12 नून पहुंच गया. बी 2 घंटा बाद लेट किया, राइट. एंड बी ऑल्सो टेक्स लेट अस सपोज 5 आवर्स.
तो ये कब पहुंचा 7 मतलब 9 AM ये स्टार्ट किया और ये पहुंचा 2 PM, है ना। सो यू कैन सी कि अगर ये लेट कर रहा है, बी अगर लेट कर रहा है, जो लेट कर रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, ज्यादा ले रहा है ना। तो वही मैंने यहां पर किया। ए, यू कैन थिंक इन लाइक दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए को हमने फेंक दिया तो ए क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और यहां पर पहुंच गया। तो लेट अस सपोज ए टेक्स 5 + टाइम, ये हमने माना। तो बी कितना टाइम लेगा, बी तो टी ही टाइम लेगा ना। या फिर अपोजिट वे में बी अगर टी टाइम ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा, 5 + टी, क्योंकि ए जो है वो 5 सेकेंड्स के लिए एक्स्ट्रा ये मूव कर रहा है और 5 सेकेंड के बाद हमने बी को वहां से फेंका। नाउ इज दिस क्लियर व्हाई इट इज टी एंड व्हाई दिस इज 5 + टी। Okay, then let us connect them. So you have to determine when and where one overtakes the other. Okay, then we have got these parameters. So let's try to connect these parameters ताकि हम equation बना के solve कर पाए. So of course, if we have obtained all the parameters, all the given parameters in the question, so what is our motive? To frame equation. And how do we frame equation? सबको equation of motion से connect करेंगे. So we will use s is equal to ut plus half at square to both these objects. तो इस केस में लगाएंगे तो मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू यू टी। अच्छा, ये ध्यान से देखो, तो ए जो है वो यहां से मूव कर रहा है और यहां पर ये पहुंच गया ऊपर से ट्रेवल करके, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में x + 34.3 वो हमने लिखा। बट टाइम है t + 5 एंड इफ यू ऑब्जर्व इनिशियल वेलोसिटी, ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सो इट विल बी 29.4, राइट। इनिशियल वेलोसिटी ए के केस में है +29.4 क्योंकि इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। बी के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज इट इज रिटन इट इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप किया मतलब उसका वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट पे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। s is equal to ut plus half at square in this case. So u is 0 for this. 0 into t is 0. So minus, क्योंकि ये प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, so put कर सकते हो, you all will get -4.9 because 9.8/2 is 4.9 t square, है ना। तो एक इक्वेशन मिला x is equal to 4.9 t square. Now let us use the same thing for this case. a के केस में s is equal to u into t, 29.4 into t, t क्या होगा, t + 5 हाफ एट प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो -4.9 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होगा, t + 5 होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन समझ में आए टू एवरीवन, ये दोनों इक्वेशन समझ में आए। Okay, so since we have got two equations and they are containing two variables x and t, so you can just solve them and we can get the result, है ना। तो ये solve, you all can solve this later on and get this result. So
here isn't it quite difficult to solve? Instead, what we can do, we can just connect these variables, जैसे कि इसको हम दूसरे वे में देखते हैं, लेट अस सी इन डिफरेंट टर्म्स। एक तो ये आप सॉल्व कर दोगे, यू ऑल विल गेट द रिजल्ट which is what we desire. Now let us suppose I don't want this much complexity to be involved here. So let us list down. Let's remember the previous case. I'll just get this diagram. Let's make a new one. So we will here simplify the calculation. Although that is the only way to solve this question. Same concept लगाएंगे but थोड़े different form में. So from this point, at a point A, 80 meters above the ground, an object is projected upwards with velocity 29.4। तो a का हम यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं, a के पास में ही लिख देते हैं, u इज 29.4, है ना, ऊपर की तरफ फेंका, u इज पॉजिटिव। a क्या है, नीचे की तरफ हमने फेंका, a ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो लेट अस टेक दैट एज, चलो माइनस g ही ले लिया, बिकॉज g कैन बी 9.8, है ना। ये अगर लास्ट में अगर रिक्वायर्ड होगा देन वी विल पुट दिस g वैल्यू। ओके, नाउ इन दिस केस लेट अस सपोज कि ए ट्रैवल करके कहां पर मिल गया, ये पॉइंट एम पे पहुंच गया, और बी सेम टाइम पे एम पॉइंट पे पहुंच गया। तो बी को तो हमने रिलीज किया है, मतलब बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सीलरेशन बी का क्या है, माइनस जी ही होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 34.3 मीटर्स। सो इफ यू लुक एट ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए इज ट्रेवलिंग, ये लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस नीचे, बी के नीचे ये मिला, तो ए इज ट्रेवलिंग माइनस एक्स प्लस 34.3, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में ये नीचे हो गया, नेगेटिव होगा। सो लेट अस अप्लाई एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इक्वेशंस को यहां पर रखेंगे, माइनस एक्स प्लस 34.3 एंड u इंटू टी, u इंटू टी 29.4 इंटू टी माइनस हाफ जी। अच्छा, यहां पर मैं t ही लूंगा, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट दैट, आई कैन टेक दैट एज t ओनली, आई विल अज्यूम कि ये यहां से यहां तक t सेकेंड्स में मिला, पहुंचा। तो b कितना टाइम लेगा, t माइनस 5, राइट। तो इंस्टेड मैं यहां पर t माइनस 5 t-5 रख के बड़ा एक्सप्रेशन बना दूं, आई विल यूज t टाइम टेकन फॉर a एंड 5 लेस देन a टेकन बाय b, है ना, बात बराबर है। इसको मैं t प्लस 5 रखूं a को, और b को t रखूं, दिस इज सेम एज कि a को मैं t रख दूं और b को t माइनस 5 रख दूं, क्योंकि b का जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज दैट एक्सप्रेशन वाज माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी माइनस 5 होल स्क्वायर, है ना। दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल। अच्छा, x होगा ना, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन समझ में आया, कुछ हमने नया नहीं किया। अगर पहले वाले इक्वेशन क्लियर है तो ये भी इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी हैव गॉट। अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द रिजल्ट। नाउ सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन,
It's very simple. What we will do, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ये x खत्म हो जाए यहाँ से, so that x can vanish. So if we subtract, किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, so let us suppose 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, so minus x plus 34.3 is equal to minus half g t minus 5 होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस 29.4 इंटू टी। तो ये कट गया, बचा क्या हमारा 34.3 इज इक्वल टू, लेट अस एक्सपैंड दिस, तो आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 25g/2 प्लस 5gt, और ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 29.4t। ये देखो, यू ऑल विल सी दिस टू बी कट। अब यहां से क्या हो जाए 34.3, हमें t निकालना है, तो इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा। अच्छा, g का वैल्यू चलो हमने रख दिया 10 ही रख दिया, तो यहाँ पे हो गया 5, सो प्लस 125 इज इक्वल टू ये 5gt, g क्या है हमारा 10 रखा हमने, सो 50t माइनस 29.4t। सो यू कैन ऑब्जर्व कि यहां से इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करने से इट बिकम्स क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल इनफैक्ट। तो यहां से हम t निकाल लेंगे, एक बार t निकल गया 3 सेकेंड्स, लेट अस चेक। ये क्या होगा 125 प्लस 34.3, let us just use the calculator and get it instantly. Let's check 3 seconds, what you got is right. So 159 approx divided by 1, 8 सेकेंड्स आ रहे हैं t, यहाँ से तो t 8 सेकेंड्स आ रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 7.9 कुछ आ रहे हैं। बट टू बी ऑब्जर्व, ये जो t हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये t क्या है, दिस t was the total time taken by A to go from the point of projection to the point where they meet. बट क्वेश्चन क्या है देखो, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक्स द अदर। सो वी कैन से either 8 seconds they overtake after 8 seconds with respect to the throw of A, or 3 seconds with respect to, or 3 seconds after B, after particle is projected from point B, है ना। A का हमने 8 निकाल लिया, तो B क्या होगा 8 minus 5, 3 seconds. So you can put this 3 seconds, चलो इसमें रख दिया, we have to put t as how much 8 seconds, right? 8 सेकेंड्स पुट कर देंगे तो मिलेगा हमें x का वैल्यू होगा 10/2 5 इंटू 8 minus 5 3 square, right? So we will get the value of x, है ना। इज दिस क्लियर टू ऑल, सभी को क्लियर है? दोनों मेथड से मैंने ये बता दिया, इनफैक्ट मेथड एक है बट just the way of solving the equation that is different. So you all can keep solving the questions simultaneously, so you can do the complete modular questions for this motion in 1D except the relative velocity in one dimension part. Most of the questions we have done, even from the modules we have attempted most of the questions at the start. So generally at the start the things are very simple, so we do modular questions. Baki jo hai, that you all will try to
फाइंड इट। तो समर्थ यू कैन सी, अगर t यहाँ पे 8 दोगे तो 8 माइनस 5 क्या आएगा, होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। और t अगर 3 डालोगे, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बट हमने देखना है कि हमने यहाँ पर t क्या लिया था। t हमने टाइम टेकन फ्रॉम a लिया था ना, और t के रेस्पेक्ट में ही तो सारी चीजें लिया हमने। तो t 8 है, तो हम यहाँ पर 8 ही पुट करेंगे, t को 8 ही पुट करेंगे, राइट। ये जो t माइनस 5 है, ये है टाइम टेकन बाय दिस b, तो वो 3 तो पुट करना है नहीं, राइट। सो फर्स्ट डिसाइड, यहाँ पर ये देखो क्या क्या वेरिएबल्स लिए है। t was the time taken by a to reach the point where these two particles meet। अच्छा, अ वेरी क्विक जनरलाइजेशन, बाकी तो आप लोग मॉड्यूल्स करोगे ही। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल्स, just attempt it। So okay, let us say at any point on the ground, from any point on the ground an object is thrown up। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वहां से फिर रिटर्न होगा, राइट। दिस ऑब्जेक्ट विल रिटर्न। तो जब ऑब्जेक्ट थ्रो किया हमने, सो लेट अस से ऑब्जेक्ट टुक t टाइम टू गो अप and object took t2 time to come down, right? So we call this t1 as the time of ascent। ascent मतलब ऊपर चढ़ने में जो टाइम लगा। we call t2, क्योंकि ये टाइम है नीचे आने में, this we call as time of descent। so many questions may involve the phrase time of ascent, time of descent। तो उस समय you all should understand that we are talking about ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम, descent मतलब नीचे आने का टाइम। So you have to find out the relation between T1 and T2. So you can tell which one is right. T1 equal to T2, T1 not equal to T2. C, T1 equal to T2 if no air resistance, T1 not equal to T2 if air resistance। These सारे option you have to choose whatever option seems to be correct। So if you see the object while it is going up, तो इस पे फोर्सेस देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, और इस पे जो रेजिस्टिव फोर्स होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस है तब हम बात करते हैं। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिव फोर्स किधर किधर होगा, मोशन के हमेशा अपोजिट होते हैं रेजिस्टिव फोर्स। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो रिटार्डेशन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, दैट रिटार्डेशन हैज इंक्रीज्ड। मतलब एक्सीलरेशन की बात कर ले, लेट अस सपोज एयर रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव एक्सीलरेशन ए, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस ए प्लस जी, राइट। इट विल इंक्रीज। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इस केस में वेट तो इधर है mg, और इस पे जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू मोशन इन ऑल ऑल द केसेस। तो ये हो गया ma। तो यहां पर देखें रेजिस्टिव फोर्स, तो वो तो डिक्रीज हो गया, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज वेरी श्योर कि टाइम इक्वल नहीं होंगे इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। If you are finding this quite complex to explore the force body diagram, no need to worry, you can skip this, because we are yet to complete Newton's laws of motion। When we do that, then it will become clear, right? तो D clear है, जब air resistance होगा तो टाइम सेम नहीं होगा, टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हमने तो देखा जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। You all can even prove this as well using equations of motion।
Okay, so yeah, that's all about today. You all can revise and do all the modular questions from motion in 1D. And all right, let's meet in the next class. Any question, any one of you? कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो. No question, I assume. Okay, all right. See you all in the next class. Bye bye, everyone. अच्छा, from which book was I referring to these questions? मैंने कुछ questions मॉड्यूल से लिए, कुछ questions I took from Cengage Mechanics. I find that good. And at the end, जब ये chapter पूरा complete हो जाएगा, then we will do JEE and NEET problems. What is the name of this chapter in NCERT? अच्छा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मोशन इन 1D जो हम कर रहे हैं. Okay, motion in 1D only. अगर प्रॉपर नेम देखो तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि बराबर है 1D कह लो या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह लो. वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट. बस नेक्स्ट क्लास में वी विल सी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एंड देन द क्वेश्चंस फ्रॉम some JEE and NEET together, along with some advanced questions, and then this chapter will be done. Okay, see you all in the next class. Bye bye, everyone.